Thank you, Governor Das, for your effective management of Indian economy during the COVID-19 period. And we will start the RBI circular gist by congratulating him for being named as Governor of the Year by the International Central Banking Journal. This critical acclamation came while the US banks, European banks are failing and Indian banking sector looks robust. When he has been appointed, he has been made fun of. Many people made fun of his history graduation degree or history honors. लोगों ने यह तक भी कहा कि अब घोड़े की रेस में गधे भी दौड़ेंगे, मगर ये गधा ना कि घोड़े के रेस में फास्ट आया, आज पूरे इकोनॉमिस्ट्स को चैलेंज कर रहा है। जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया है इन्फ्लेशन टारगेटिंग एमपीसी का जो प्लस माइनस 2% और 4% रहता है, दैट मीन्स अपर सर्किट 6%, लोअर सर्किट 2%, उसके अंदर इन्फ्लेशन को रखना होता है। गवर्नर दास ने कोविड-19 जैसे पीरियड में जहां कि फेडरल रिजर्व, यूएस के फेडरल रिजर्व ने भी इन्फ्लेशन को मैनेज नहीं कर पाया, तब आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इफेक्टिवली इसे मैनेज किया। इससे पता चलता है कि आप कहां से आते हैं मैटर नहीं करता, आप कहां पहुंचते हैं मैटर करता है। Where you start doesn't matter, but where you end, it definitely matters. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सब उनके इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन के वजह से क्रिएटेड रोबस्ट बैंकिंग सिस्टम व्हाइल फेड हैज फेल्ड। फेड मतलब फेडरल रिजर्व। द ग्रॉस एनपीए ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम हैज केम डाउन टू 5.8% as on March 2022 from 11.2% 4 years back. और we will also quote him by saying never lose your faith on India's destiny by Shaktikant Das. चलिए स्टार्ट करते हैं आरबीआई सर्कुलर जिस्ट मार्च 2023। कुछ स्पेशल है इस सेशन में, और सेशन बाइलिंगुअल रहेगा फॉर बोथ माय इंग्लिश एंड हिंदी व्यूअर्स। एंड व्हाट इज ऑन द शो, लेट मी डिस्कस। शो में क्या क्या है आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, शो में है RBI circulars, notifications related to RBI, RBI in news, RBI related economic concepts, first time on the show RBI in news, and question of the month, how can RBI manage the rupee depreciation? ये एक नया कॉन्सेप्ट है, एनालिटिकल क्वेश्चंस, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हम आंसर करेंगे 5 और 6 बुलेट पॉइंट्स में। और आज यूजुअल सिक्स पॉइंट में रहेगा आपका टॉप एमसीक्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यू कैन डाउनलोड आरबीआई सर्कुलर जिस्ट ई बुक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन लिंक, और जहां पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में वहां पे क्लिक करिए, सारा लिंक आपको मिल जाएगा। ज्वाइन आवर डेडिकेटेड ग्रुप फॉर अपकमिंग आरबीआई ग्रेड बी, आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 एग्जाम्स। यू नो वी आर नंबर 1 इन बैंकिंग लैटरल एंट्री इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट, सो आप ये सब तो चेक कर ही लेंगे। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है आज के सर्कुलर्स में? Reserve Bank of India, as I said, RBI governor has been named as governor of the year, Mr. Shaktikant Das. Das has been commended for his critical reforms, payment innovation, and steady leadership. Managed COVID crisis effectively, and India had one of the fastest recoveries in the world. Das defended and drove reform progress, including bankruptcy code and banking capital rising. He has also created standalone. Okay, let me hide. Okay, he has also created standalone supervision department and college for supervisors for training, monetary policy committee, and must ensure inflation expectations stay within the central banking target. ये सब अवार्ड उन्हें मिला है, ये सब अवार्ड उन्हें मिला है बाई द सेंट्रल बैंकिंग जर्नल। तो ये सेंट्रल बैंकिंग जर्नल है क्या? व्हाट इज सेंट्रल बैंकिंग जर्नल? The Central Banking Journal is an economic research journal which publishes articles on topics related to central banking and monetary policy. The journal covers research and analysis issues such as मैं आपको बिग स्क्रीन में ये सब दिखाता हूँ, such as monetary policy framework, financial stability, micro prudential regulations, and central bank communications. It also publishes quarterly and includes articles by both academics and
practitioners in the field of central banking. The journal is widely respected and read by economists. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आरबीआई इन द न्यूज के संदर्भ में, न्यूज रिलेटेड में एक न्यूज आर्टिकल है, आरबीआई गवर्नर लेज द फाउंडेशन फॉर ग्रीन फील्ड डाटा सेंटर्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। द गवर्नर of RBI has laid foundations for Greenfield Data Center and Training Institute in Bhubaneswar. The new facility will cover 18.55 acres and serve the RBI's financial sector needs. Computing infrastructure will be enhanced with research capacity building and in emerging areas. तो ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जो है ये क्या होता है? मेनली जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होता है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट मतलब जो प्रोजेक्ट, जो सॉफ्टवेयर, जो डाटाबेस, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल अपने बेस से बनता है, नया होता है। जैसे कि आपने एग्जिस्टिंग फील्ड को रिफॉर्म करके, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके अगर करते हैं, तो वो ग्रीन फील्ड नहीं होगा। मतलब इट्स रेजिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है, बिल्डिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम द स्क्रैच इज कॉल्ड द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, आजकल बहुत यूज होता है इकोनॉमी में, तो मे भी आपको सवाल आ सकता है। तो नाउ आरबीआई कंडक्ट्स ए वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शंस। तो आरबीआई कंडक्ट ए 5-day वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन वर्थ 75,000 crore. The fine tuning auction held instead of main 14 days variable repo or reverse repo auctions. Variable repo rate auction injects liquidity to banking system and current liquidity deficit is around 76,513 crore. तो आरबीआई 14 दिन का जो पहला ऑक्शन रेट ऑक्शन होता था रेपो का, वो अभी 5 डे का एक आरबीआई ने किया हुआ है वर्थ ₹75,000 crore। क्योंकि रेपो रेट ऑक्शन से क्या होता है कि वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन से लिक्विडिटी मार्केट को आता है, और जो करेंट लिक्विडिटी डेफिसिट है, जो मार्केट में लिक्विडिटी की कमी है, वो 76,513 करोड़ का है। ठीक है, यू गॉट इट। आज के डेट में एग्जाम में नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 76,513 करोड़, और ये कितने करोड़ का है? 75,000 करोड़ का ऑक्शन है। ठीक है, सो वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन में क्या क्या होता है? वेरिएबल रेट रेपो रेट ऑक्शन में इज यूज्ड टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू द बैंकिंग सिस्टम। अभी बैंकिंग सिस्टम में 76,000 करोड़ का डेफिसिट है। In short-term loan facility where banks can borrow money from RBI by pledging government securities as collateral, ये तो रेपो का कैरेक्टरिस्टिक है। The interest rate on the loan is variable, meaning it can change depending on the prevailing market conditions. The significance of the variable rate repo auction lies in its ability to address short-term liquidity mismatch in economy. ठीक है, तो ये सब है इसके बेनिफिट्स। चलिए, RBI imposes penalty on HDFC for non-compliance. Non-compliance के चलते RBI ने HDFC के ऊपर पेनाल्टी लगाया है 5 लाख करोड़ का for violating the norms of NHB. NHB conducted a statutory inspection on HDFC's financial position as on March 31st, 2020. ये HDFC बैंक नहीं है, ये HDFC है जो कि मर्ज होने जा रहा है और इसके बैंक के साथ। ठीक है, the Finance Number 2 Act 2019 amended the National Housing Bank Act 1987, giving the RBI's power to regulate the HFC. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक पेनल्टी है, ये पेनल्टी किसके ऊपर है? ये पेनल्टी है IHG होल्डिंग के ऊपर। 11.25 लाख का पेनल्टी ऑन IHG होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी इज मेजरली इनटू ट्रांसपोर्ट, majorly into transports, storage and communication business. Statutory inspection of the company was conducted by RBI with reference to its financial positions as on March 31st, 2021. The examination of the risk assessment report in a report inspection report supervised letter revealed the non-compliance। और non-compliance में क्या था? Non-compliance में था कि company failed to transfer 20% of its net profit as disclosed in profit and loss account in FY 2021। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है?
आगे है आरबीआई अनाउंसेस 8.51% rate of interest on floating rate bonds in 2023। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। The Reserve Bank of India announced The Reserve Bank of India announced 8.51% rate of interest on Government of India floating rate bond 2023. The rate of interest will be applicable for the half year March 2022 to September 21. The central bank further said it may be recalled the FRB 2023 carries a coupon which has a base rate equivalent to the average weighted average yield. बॉन्ड के बारे में हमने इंटरनल सेशन में एक डिटेल्ड सेशन लिया हुआ है, आप जाके उसे देख सकते हैं, उसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपके एसजीबी प्री मैच्योर रिडीम्शन। आरबीआई नोटिफाइज द प्राइस फॉर प्री मैच्योर रिडेम्पशन ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में है जो प्री मैच्योर रेट्स हैं वो रिवाइज्ड हुआ है। क्या है प्री मैच्योर रिवाइज रेट्स, मैं आपको दिखाता हूं बिग स्क्रीन में। The Reserve Bank of India has released the price for yearly premature redemption of sovereign gold bond scheme which is due on March 21 2023। इस डेट पर ड्यू था, उसके जो प्री मैच्योर रिडेम्पशन है उसके रेट्स हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो नया रिडेम्पशन प्राइस है वो 5921 होगा पर ग्राम। द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन द बॉन्ड विल बी 1 ग्राम एंड द मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन लिमिट फॉर is 4 kilograms per individuals, 4 kilograms per HUF and 20 kilograms for trust। ठीक है, चलिए, and SGBs are government securities which are denominated in the gold। They serve as alternatives to the holding actual gold and are issued by the RBI on behalf of the GOI Government of India। Redemption price is now 5921। The bank account provided during the 5921 is पर ग्राम 5921 में आप रिडेम्पशन कर पाएंगे, जहां पे आपका कैपिटल अप्रिसिएशन हो रहा है ड्यू टू द फॉल ऑफ the share markets across the globe। The gold price has increased during these years। ठीक है, चलिए, the early redemption of the gold bond is allowed after 5 years from the date of issue and on the date of interest due or when interest is due। okay, चलिए, and in March 29 2023 it will be required date for early redemption for the two tranches of 2016 and 2017। ठीक है, 2016 और 2017 के जो दो ट्रेंचेस थे वो मैच्योर हो रहे हैं मार्च 29 2023 को। द बॉन्ड्स आर ऑफर्ड इन मल्टीपल्स ऑफ 1 ग्राम और गोल्ड, यू नो दैट। ठीक है, हमने एसजीबी के ऊपर एक पूरा डिटेल्ड सेशन लिया हुआ है। ठीक है, आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर पोस्ट इज वैकेंट। चीफ्स ऑफ बीओबी, बीओएम, पीएनबी एंड 2 एमडीज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आर इन द रेस। क्योंकि मिस्टर एम के जैन जो आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर हैं उसका 5 साल का टेन्योर पूरा हो रहा है। ठीक है, तो आरबीआई हैज 4 डेप्यूटी गवर्नर्स, you know that। The fourth deputy governor who oversees the functioning of departments such as monetary policy, economic and policy research, statistics and information management, financial market regulation and operations, would either be a career of central bank economist or a senior finance ministry bureaucrat or a top notch economist from the private sector। तो कहीं से भी आके काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बैंक ऑडिट PSBs to decide audit exposure of branches and now chartered accountants are worried for that। क्योंकि अभी जो है अकाउंटिंग में बैंक्स को 90% ऑफ बैंक्स के जो बिजनेस है, बैंक्स के जो ब्रांचेस हैं उनके ऑडिट होते थे। अभी आरबीआई ने क्या कहा है कि मिनिमम पब्लिक सेक्टर बैंक के 70% ब्रांच में ऑडिट होगा। इसका ये मतलब है सीधा सीधा, क्योंकि जो ऑडिटर है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो कम सैंपल साइज को लेके ऑडिट करेंगे जिससे मार्जिन ऑफ एरर बढ़ सकता है, इसीलिए वो
वरीड हैं। तो दो नंबर्स आपको यहाँ पे नोट करने होंगे। पहले जो 90% था वो कम होके अभी 70% है। ठीक है, तो ये FY23 से लागू होगा। तो 70% ऑफ ऑल फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड लोन्स आर टू बी ऑडिटेड इंस्टेड ऑफ द 90% लिमिट। ठीक है, चलिए, आरबीआई सेंट्रल बैंक एंड यूएई साइन एमओयू। तो ये दो सेंट्रल बैंक जो हैं वो अभी एमओयू साइन कर रहे हैं। The RBI and the Central Bank of UAE has signed an MOU for cooperation and interoperability of central bank digital currency। मतलब एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी दूसरे बैंक के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के साथ स्वाप किया जा सकता है। ठीक है, the two central banks will cooperate on emerging areas of fintech, especially CBDC and exposure to interoperability। इसके ऊपर वो बात करेंगे। They will conduct POCs and pilots of bilateral CBDC bridge। एक CBDC से दूसरे CBDC में पेमेंट किया जा सकता है। ठीक है, ये न्यूज यहीं तक इंपॉर्टेंट था। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज के तरफ बढ़ते हैं। Okay. RBI asks banks to make extra provisions for top 20 business houses। प्रोविजनिंग किया जाता है फॉर अनसर्टन कंडीशंस इन बैंकिंग सिस्टम, या फिर एनपीए के लिए प्रोविजनिंग किया जाता है। सो नाउ आरबीआई एडवाइसेस बैंक्स banks to keep aside a specific portion। Okay, yes, RBI advises banks to set aside a specific provisioning of 20 conglomerates of India। ठीक है, जो 20 टॉप conglomerates हैं उनका जो एक्सपोजर है, उनमें जो लोन उनके लिए उनको जो लोन बैंकिंग सेक्टर में दिया है उसका सिमिलर अमाउंट बैंक को अलग से रखने होंगे। द मूव इज ए प्रिकॉशनरी मेजर, इज नॉट ए वार्निंग सिग्नल। आपको पता है दो तरह के वार्निंग सिग्नल्स होते हैं, ईयरली वार्निंग सिग्नल्स ईडब्ल्यूएस, ईयरली वार्निंग सिग्नल्स जहां पे स्ट्रेस डिटेक्ट होता है वहां पे कुछ अकाउंट को ईयरली वार्निंग सिग्नल में रखा जाता है, और कुछ अकाउंट में जहां पे ज्यादा स्ट्रेस नजर आता है उसको आरएफए में रखा जाता है, यानी कि रेड फ्लैग्ड अकाउंट। तो ये कोई इस तरह का एक्सपोजर नहीं है, ना कि ये 20 बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के अकाउंट्स को ना कि ईडब्ल्यूएस में ना कि आरएफए में रखा जा रहा है। बस एक प्रिकॉशनरी मेजर लिया जा रहा है, क्योंकि जैसे अदानी ग्रुप के साथ हुआ, कभी भी कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट अगर फेल हो जाए बैंकिंग सिस्टम में कोई आंच ना आए, इसके लिए ये मेजर लिया गया है। होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। ठीक है, चलिए, RBI is closely monitoring the financial performance of conglomerates and their companies for any sign of stress। Prudential provisioning will be part of banks capital buffer। ठीक है, चलिए, and gross NPA from all scheduled banks, you know, we just discussed, has come down to 5.8% against 11.2 in 2018। Okay, and this increased vigilance is an addition of routine monitoring of क्रिलिक के साथ। क्रिलिक में 5 करोड़ के ऊपर का एक्सपोजर को तो क्रिलिक में रिपोर्ट किया ही जाता था पहले, और ये जो रिपोर्ट है, ये जो मेजर है, ये एडिशनल मेजर्स। ठीक है, आरबीआई एक्सक्लूड्स एबीसीबी एडीसीपी मतलब अबू धाबी कमर्शियल बैंक फ्रॉम सेकेंड शेड्यूल। ठीक है, सेकेंड शेड्यूल से उसको हटा दिया गया है। आरबीआई हैज अनाउंस्ड द RBI has announced that the cessation of ADCB as a banking company as per Banking Regulation Act, ADCB will no longer will be able to carry the business in India। ADCB takes such a strict action after considering the bank's financial position। ADCB is also excluded from the second schedule of the RBI Act। Okay, and it will no longer be a second schedule bank। ठीक है, और आखिरकार इस महीने आरबीआई सर्कुलर्स बहुत कम थे, इसलिए हमने एडिशनल पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा डिस्कस किया। तो नाउ ए न्यू एडिशन, एनालिटिकल क्वेश्चन ऑफ द मंथ ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूं। हाउ कैन आरबीआई कंटेन द रूपी डेप्रिसिएशन। आरबीआई जो है रूपी डेप्रिसिएशन को कैसे कंटेन कर सकता है, उसके लिए क्या करना होगा आरबीआई को इंक्रीज करना होगा इंटरेस्ट रेट्स,
When interest rates are higher in India, foreign investors are more likely to invest in India, increasing the demand of rupee, right? Which can help to strengthen the currency. Second point, buy they can the intervention of the forex market. RBI can buy rupee in the foreign exchange market, increasing the demand for the currency and helping to stabilize its value. Or increase the foreign investment limit. RBI can increase the limit of foreign investment in India, like FDI limits, etc. They can implement capital controls. RBI can restrict the outflows of the capital from the country to prevent excessive depreciation of the currency. और क्या है? And increase exports, and RBI can encourage more exports for strengthening rupee. Exports will earn foreign currency that will strengthen the Indian rupee, and it can also increase the foreign currency reserve through various means. Okay, तो इससे होगा ये फायदा. ठीक है, चलिए क्वेश्चन एंड आंसर सेशन यानी कि एमसीक्यू सेशन के तरफ आगे बढ़ते हैं. ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन एंड एमसीक्यू में क्या है? पहला क्वेश्चन, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कंडक्टेड 5-day वेरिएबल rate repo auction for a notified amount of rupees how many crore? 57,000 crore, 75,000 crore, 74,000 crore. अच्छा, आंसर आपके सामने दे दिया गया है. चलिए ये आंसर था 75,000 करोड़. बट नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये तकलीफ नहीं होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. बताइए, गवर्नर शक्तिकांत दास laid the foundation stone of Greenfield Data Center and an enterprise computing and cyber security training institute in which of the following cities? New Delhi, Bhubaneswar, Bengaluru and Chennai. Time for you to answer. आपके लिए आंसर देने का टाइम है, बताइए. और इसका आंसर होगा भुवनेश्वर. राइट आंसर हियर इज भुवनेश्वर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. What act was amended in 2019 to confer in 2019 to confer certain powers for regulation of housing finance companies with RBI? इनमें से कौन सा एक्ट को अमेंड किया है ताकि आरबीआई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को रेगुलेट कर सके? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट, एनएचबी एक्ट और कंपनीज एक्ट. एचएफसी से रिलेटेड होगा एनएचबी रेगुलेटर. तो एनएचबी का जो काम है रेगुलेशन, उसको अगर आरबीआई कंट्रोल में लेगा तो वो अमेंड करेगा एनएचबी एक्ट को. ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हालांकि कॉन्सेप्ट्स कम थे इस महीने, मगर क्वेश्चंस हमने कम नहीं किया है आपके लिए. What was the main objective of amending the NHB Act 1987? To provide financial assistance to the housing sector, to regulate housing finance companies, to promote affordable housing for all, or to provide tax incentives to the home buyers. इनमें से कौन सा है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फॉर अमेंडिंग द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987? आंसर करिए, ऑप्शंस आपके सामने है, आंसर इट. और राइट आंसर यहां पे होगा बी, टू रेगुलेट द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. What penalty was imposed by RBI on IHG Holding Private Limited for non-compliance with RBI Act provisions? Rupees 10.25 lakh, rupees 11.25 lakh, rupees 12.25 lakh, or rupees 13.25 lakhs. Which is the right answer? राइट आंसर दीजिए, और ये है 11.25 लाख. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स. What was the primary business of IHG Holdings Private Limited? Banking and finance, transport, storage and communications, hospitality and tourism, manufacturing and production. IHG होल्डिंग पर पेनाल्टी लगा है एंड इसका जो मेन बिजनेस है ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. What did the statutory inspection of IHG Holding Private Limited by RBI reveal? Non-compliance with accounting standards, violation of securities law, failure to disclose the related party transactions. RTP के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहा है. Failure to comply with the statutory requirement of transferring
20% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू द रिजर्व फंड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? बताइए। और राइट आंसर है फेल्यूर टू कंप्लाई विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसफरिंग 20% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू रिजर्व फंड। कंपनी के केस में, फाइनेंशियल कंपनी के केस में, एनबीएफसी के केस में 20% जो नेट प्रॉफिट है उसको रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना है। ये एक चीज आप याद रखिए, स्टैटिक से भी ताकि क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकंड, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो है वो न्यूज में है अदानी फियास्को के वजह से, तो आप इसे भी याद करिए। ठीक है। Next question on your screens. What is the rate of interest announced by RBI on Government of India floating rate bond 2023 for the half year March 22 to September 21? 8.1 percentage, sorry, 8.1 percentage, 8.31, 8.51, 8.01. Tell us the right answer. The right answer over here is 8.51 percentage. What is the coupon base rate for FRB 2023? बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, पढ़िए, कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, व्हाट इज द कूपन बेस रेट फॉर February 2023? Average of the weighted average yield way of last 5 auctions of 182 days of T-bill, okay, or last 4 auctions of 182 days T-bill, last 3 auctions or last 2 auctions? Right answer is last 2 auctions of 182 days T-bill. ठीक है, ऑप्शन आपको दिखा देता हूं फिर से, तो ध्यान से देख लीजिए। बहुत सारा क्वेश्चंस हैं, टाइम समय कम है हमारे पास, जो कि हमारे आरबीआई सर्कुलर्स के रेगुलर फॉलोअर्स हैं। इंटरनल सेशन में आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, मगर समय कम होने के कारण से बहुत सारे क्वेश्चन है, हम बहुत क्वेश्चंस कवर करते हैं आरबीआई सर्कुलर में। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के सैंपल भी दिखा सकता हूं, आपके स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। आप अगर आरबीआई सर्कुलर जिस्ट को सब्सक्राइब करेंगे, आपको पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है, पूरा जो क्वेश्चन बेस है, सब कुछ मिल जाएगा। एंड यू कैन एनरोल टू वन ऑफ द एक्सक्लूसिव कोर्सेज ऑफ नॉलेजिस्ट। यू नो you know that in any professional banking and lateral entry exam we produce 90% of the results। यानी कि इस तरह के एग्जाम में 100 में से 90 लोग नॉलेजिस्ट को फॉलो करते हैं। आप कंपेयर कर सकते हैं, एक भी सक्सेस स्टोरी सीबीओ के पास, सीबीओ, आरआरबी, पीओएम जैसे एग्जाम के बाद होने के बाद नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। जबकि हमने 100 से ज्यादा सक्सेस स्टोरीज इसी 2023 में अपलोड कर चुके हैं आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस तरह से नॉलेजिस्ट और आपके मेहनत और हमारे परसिस्टेंस के वजह से नंबर 1 होता चला जा रहा है। थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन। सो लेट्स मीट इन एन एक्सक्लूसिव सेशन इंटरनली ऑन आरबीआई सर्कुलर्स के ऊपर एक स्पेशल क्लास हम लेने वाले हैं, जो कि अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके रिलेटेड। ठीक है, सो वी थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कोऑपरेशन। थैंकिंग यू ऑल अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ये नया इनिशिएटिव था आरबीआई सर्कुलर रजिस्ट को स्पाइस अप करने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा है, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, कॉलीग्स एंड एवरीवन। एंड हमें बताइए कमेंट सेक्शन में पिछले आरबीआई सर्कुलर रजिस्ट से इस बार का मॉडिफिकेशन आपको कैसा लगा।